اعتقاد، یسوع مسیح پر ایمان، مسیح یسوع کے پاک جلالی اور عظیم نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرے ساتھ دیکھیے گا مرکز کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آمین۔ جی عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب کوئی ہمارا بہت پیارا یا عزیز بھائی یا عزیز بہن، ماں باپ، بچے کوئی بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو ہم جو ہے بعض ٹائم ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد جو ہے ڈگمگا جاتا ہے، لیکن کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کے سیاق و سباق کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیوں کہی گئی، کس لیے کہی گئی، کس وجہ سے کہی گئی، کس نے کہی اور کس کے لیے کہی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب ہم مرکز کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 23 آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے، اس کا جو بچہ ہے وہ بدرو گریزتا ہے، کہتا ہے بچپن سے اس کے اندر تو کر سکتا ہے، اور یسوع مسیح ناصری بھی آگے اس کو کہتے ہیں کہ اگر تو اعتقاد رکھتا ہے، بلکہ یہاں پر لکھا ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آج جب ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں بیماری میں، کسی کا باپ، کسی کی بہن، کسی کا بیٹا، وٹ ایور کوئی بھی ریلیشن ہے جس کو لے کے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اس انسان کے اندر سے بیماری کیوں نہیں جا رہی۔ سم ٹائم یہ ہماری شفا کے لیے، معجزے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ پڑھتے ہیں پاک کلام میں لکھا ہے کہ 38 برس کا بیمار جو ہے وہ یسوع مسیح کے کہنے پر ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے لیے بھی خدا نے معجزہ رکھا ہوتا ہے، آپ کا بھی وقت مقرر ہوتا ہے کہ کب آپ کی بیماری نے آپ کے اندر سے دور جانا ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ آپ نے اپنا اعتقاد، اپنا ایمان جو ہے وہ یسوع مسیح پر پختہ رکھنا ہے۔ یہاں پر اس نے اسے کہا کہ تو کر سکتا ہے، اس نے کہا کہ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے تو آپ کے لیے بھی ہو جائے گا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے اندر رائے کے دانے جتنا بھی ایمان ہے تو پاک کلام میں ہی لکھا ہے کہ تو اگر پہاڑ سے کہے گا کہ یہاں سے اٹھ کر وہاں چلا جا تو وہ بھی چلا جائے گا۔ یہ بیماری تو ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ ہلکی سی بات ہے۔ آپ نے اپنا ایمان خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر رکھنا ہے۔ جب آپ ایمان رکھیں گے تو آپ کے لیے ہو جائے گا وہ جو بیماری کا پہاڑ ہے آپ کے اندر سے نکل کر دور چلا۔ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آج آپ کا بھی ایمان، آپ کا اعتقاد یسوع مسیح پر مضبوط ہے تو آپ کے لیے سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر آپ کے اندر بیماری ہے، آپ اس کو کہیں گے کہ مجھے چھوڑ کر وہاں چلی جا، پہاڑ کی طرح، تو آپ کے اندر سے وہ بیماری نکل جائے گی یسوع کے نام سے، ایمان اور اعتقاد کی وجہ سے۔ ایمان ہے کیا چیز؟ آئے میرے ساتھ دیکھیے گا، عبرانیوں کا خط اس کا 11 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو چیز نظر آتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ایمان ہے کیا۔ ایمان جو ہے امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد، اندیکھی چیزوں کا ثبوت ایمان ہے۔ جب نوح نے
कश्ती बनाई, खुदा ने उसे गाइड किया, लेकिन उसने वो सब कुछ नहीं देखा था, लेकिन खुदा पर ईमान रखा और उसने कश्ती बनाई और वो पूरा खानदान बच गया। अगर आज आप भी ईमान रखेंगे तो नूह की तरह आप बच जाएंगे। अगर आपकी बीमारी बहुत लंबी हो चुकी है, काफी अरसा दराज से बीमारी ने आपको घेरा हुआ है, लेकिन आप यीशु पर ईमान रखें, यीशु मसीह आपको इस बीमारी से जरूर निकाल लेंगे, इस दुख से जरूर निकाल लेंगे, इस परेशानी से जरूर निकाल लेंगे। अगर आपके अंदर राई के दाने जितना भी ईमान है। ईमान बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी ईमान है और वो पुख्ता है और वो यकीन के साथ है कि यीशु वो जो इंसान है यीशु मसीह के पास आया, वो ईमान रख कर आया। बेशक वो बहुत बड़ा ईमान लेकर नहीं आया, बेशक छोटे ईमान के साथ आया। उसके बेटे के अंदर गूंगी बहरी बदरू थी, उसने खुदावंद यीशु मसीह को बताया। यीशु मसीह ने आगे से उससे कहा कि अगर तू ईमान रखता है, अगर हमारा ईमान आज मजबूत है, पुख्ता है यीशु मसीह पर, तो हमारे लिए वो सब कुछ हो जाएगा। जैसा कि पाक कलाम में लिखा है, जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस इंसान ने यीशु मसीह पर ईमान रखा और यीशु मसीह से कहा कि मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। यीशु मसीह ने उसकी बेइत्तेकादी का उसी वक्त इलाज किया, उसके बेटे को उस बदरू की गिरफ्त से आजाद करवाया। हालेलुया। उसके नाम को जलाल देते हुए हम उसके आगे झुकते हैं, क्योंकि वो पाक है, वो सब कुछ कर सकता है। आइए उस पर अपने ईमान को पुख्ता करें। जब आप अपने ईमान को पुख्ता करेंगे, जिस तरह वो बेटा बचपन से गिरफ्तार था वो बहाल हो गया, आज आप भी बहाल होंगे। मेरा ईमान है, यीशु मसीह के आगे झुके, उस पर पूरा ईमान रखें, सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक पूरा ईमान रखें। खुदा आपको देख रहा है, वो आपको वॉच कर रहा है। जब आप ईमान के साथ, आजिज़ी के साथ उसके आगे झुकेंगे, आपकी बीमारी कैंसर जैसी क्यों ना हो, आप कब्र में उतरने वाले क्यों ना हो, आप टीबी में है मुब्तला, किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, उसके आगे झुक जाएं, अपने आप को ढेल दें। जब आप पूरे ईमान के साथ, पूरे इत्तेकाद के साथ उसके आगे झुकेंगे, तो वो बीमारी का पहाड़ आपको छोड़कर, अगर आज आप उस पर ईमान रखेंगे, तो आप रिहाई पाएंगे, मखलसी पाएंगे, तंदुरुस्ती पाएंगे, खुदा के जलाल को देखेंगे। अगर आप उस जलाल को देखना चाहते हैं तो अपने ईमान को, इत्तेकाद को यीशु मसीह पर मजबूत करें। जब आप यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे, हर दुनिया की फिक्र से, हर दुख से, हर बीमारी से, हर परेशानी से आजाद होंगे। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, मत्ती की अंजील उसका 17 बाब उसकी 20 आयत में लिखा, उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। आमीन। आप देखिए पाक कलाम में भी लिखा है कि अगर आपके अंदर राई के दाने जितना, राई सरसों छोटा सा दाना होता है, उतना भी ईमान है, तो यीशु मसीह से कहें कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए ये कर, बीमारी के पहाड़ को तोड़ दे, गरीबी के पहाड़ को तोड़ दे। अगर आपके पास घर नहीं, अच्छी जॉब नहीं, अगर आपके पास बेटे नहीं, बेटियां नहीं, बेऔलादी है, कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह के आगे झुके पूरे ईमान के साथ, आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है। वो सब कुछ देने की कुदरत रखता है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, उसके खजाने भरे हैं। मांग कर तो देखिए। आए उसके आगे झुके ईमान के साथ, इत्तेकाद के साथ। जिस तरह उस इंसान ने अपने बेटे को आज़ाद करवाया, आज खुदा आपको भी आज़ाद करना चाहता है, पूरे इत्तेकाद, पूरे ईमान के साथ उसके आगे झुकी तरह मेरे साथ देखिएगा। मत्ती की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिल जाएगा। जब आज
जब आप दुआ करें, आपने पूरे ईमान के साथ कहना है, खुदा से माफ़ी मांगनी है कि खुदा मैंने आज तक पूरे एतकाद के साथ, पूरे ईमान के साथ कुछ नहीं मांगा। अगर मैं भूल गया, अगर मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ़ कर, और मुझे ईमान के साथ, आपने पूरे ईमान के साथ खुदा से नहीं मांगा। बेशक आपकी बीमारी लंबी है, बेशक आप किसी अरसा दराज से दुख में मुब्तला हैं, लेकिन आपकी नहीं सुनी गई, तो कमी आपके अंदर है, क्योंकि आपने अपने ईमान को पुख्ता नहीं किया। आपने अपने इत्तेकाद को यीशु मसीह पर पूरा तौर से, आपने कलाम में पढ़ा है कि वो 38 वर्ष का जो बीमार था, वो हौज के किनारे बैठा रहता था, इसी उम्मीद के साथ कि किसी ना किसी दिन मैं इस हौज में जरूर उतरूंगा। वो भी उम्मीद के साथ वहां पर बैठा रहता था। और एक अंधा शख्स जो है, वो भी भीड़ में से चला उठा, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। आपने भी उसी तरह, उनकी तरह खुदावंद यीशु मसीह को पुकारना है और यीशु मसीह से शिफा को हासिल करना है। आपने बीमार नहीं रहना, आपने बल्कि यीशु मसीह के नाम पर उस बीमारी को खत्म करना है और यीशु के नाम को जलाल देना है। जब देर हो जाती है तो हमारा एतमाद, हमारा ईमान डगमगा जाता है। जिस तरह जादून जो है, जब खुदा ने उसे बुलाया तो उसे खुदा की जात पर शक हुआ, तो उसने भी खुदा को 2 दफा आजमाया, और खुदा जब अपनी आजमाइश पर पूरा उतरा तो उसने अपने ईमान को खुदा की जात पर पुख्ता किया। आज आपने भी डगमगाना नहीं, बेशक जादून की तरह ही, लेकिन अपना ईमान यीशु मसीह पर रखना है कि यीशु मसीह मेरे लिए ये सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो यकीनन कर सकता है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, मरकस की अंजील उसका 11 बाब उसकी 22 और 24 आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। आपने खुदा पर ईमान रखना है, यकीन रखना है। अपने यकीन को कभी नहीं तोड़ा, वो खुदा के हजूर बैठी रही जब तक उसे सैमुएल नहीं मिला। अगर आज आपके पास औलाद नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं, तो हन्ना के यकीन को देख लें, वो बैठी रही और सैमुएल को लेकर वहां से उठी। आज आपने भी उसके हजूर बैठना है और आपने भी औलाद को लेकर उठना है, क्योंकि हन्ना बहुत बड़ी मिसाल है, जो खुदा के हजूर रोती रही, चलाती रही, यहाँ तक कि उसके आंसू भी सूख गए, लेकिन वो खुदा की हजूरी से कभी इधर उधर नहीं हुई। उसने खुदा पर ईमान रखा और सैमुएल पा लिया। आज मेरा ईमान है, जब आप उसकी तरह उसके हजूर बैठेंगे तो आप भी औलाद से खाली नहीं रहेंगे। आपकी झोली खुदा औलाद से ज़रूर भरेगा। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, लूका की अंजील उसका 8 बाब उसके 50 आयत में लिखा है, यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया कि खौफ ना कर, फक्त इत्तेकाद रख, वो बच जाएगी। अजीज बहनों और भाइयों, वो जो 12 साल की बच्ची थी, वहां पर हुल्लड़ मच गया, शोर मच गया कि वो मर गई है, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा कि इत्तेकाद रख, तेरी बेटी मरी नहीं बल्कि सोती है। आज यीशु मसीह पर आप भी ईमान रखेंगे तो आप भी उसी तरह जिंदगी, बहाली, तंदुरुस्ती जरूर पाएंगे। वक्त बात एक ही है, यीशु मसीह पर पुख्ता ईमान, यीशु मसीह पर एतकाद जब आप रखेंगे तो आप, इब्रानियों का खत उसका 11 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन, हालेलुया। जब तक आपके अंदर ईमान नहीं होगा, आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते।
इसलिए खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। पर कलाम में भी फरमाया गया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पर मौजूद होता हूँ। जब आप खुदा के हजूर आते हैं, खुदा से मांगते हैं, बात करते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा खुद ब खुद आपके साथ मौजूद होता है। आप इस बात को महसूस किया करें। जब खुदा आपके साथ होता है तो आपकी जो बात है, आपकी जो दुआ है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि खुदा मौजूद होता है और खुदा आपकी उन आहों को, उस रोने को, उस दुख को, उस तकलीफ को खुदा देख रहा होता है, खुदा सुन रहा होता है। आप पूरे ईमान के साथ खुदा से बात करें, खुदा को बताएं, मेरी ये मुश्किल है, मेरा ये दुख है, मेरी ये तकलीफ है, ऐ खुदा मुझे इससे आज़ाद कर। जब आप पूरे ईमान के साथ खुदा के तालब होंगे तो खुदा कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, खुदा हमेशा आपके साथ रहेगा। ईमान ही के सबब से अजीज बहनों और भाइयों, हाबिल ने काइन से अफसल कुर्बानी खुदा के हजूर गुजरानी। ईमान ही के सबब से हनूक उठा लिया गया। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नजर न आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घर के बचाव के लिए कश्ती बनाई। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था। अजीज बहनों और भाइयों, ये है ईमान की पुख्तगी। जब आप ईमान रखेंगे तो इन लोगों की तरह आप भी सब कुछ पालेंगे। इसी तरह ईमान ही के सबब से सारा ने भी सन यास के बाद हामला होने की ताकत पाई। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा पर ईमान रखें और ईमान ही के सबब से ये सब ईमान ही की हालत में मरे और वादा की हुई चीज़ें ना पाई, मगर दूर ही से इन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। उन्होंने ईमान से सब कुछ पा लिया। खुदा ने जो जो उनको दिया, उन्होंने ईमान रखा और उन चीज़ों को पाया। आज अगर आप भी कुछ पाना चाहते हैं तो आप खुदा पर ईमान रखें। जब आप अपने ईमान को, अपने इत्तेकाद को पुख्ता करेंगे तो वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। और जैसा कि मरकस की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 23 आयत में मैंने शुरू में पढ़ा था, लिखा है कि अगर तू कर सकता है, लेकिन आगे से यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है। अगर आप इत्तेकाद रखेंगे, ईमान रखेंगे तो आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। जो नामुमकिन है वो नामुमकिन कभी नहीं, बल्कि इन द नेम ऑफ जीसस, यानी कि यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन होगा। आप रिहाई पाएंगे, आप मखलसी पाएंगे, आप यीशु के जलाल को देखेंगे। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ईमान है, जब आपके अंदर ईमान होगा, पुख्ता ईमान होगा, तो वो सब कुछ आपके लिए करेगा जो कुछ। जब वो शख्स खुदा के पास आया तो उसने कहा कि ऐ यीशु, ऐ खुदा, मेरी कम इत्तेकादी को दूर कर दे। आज अगर आपके अंदर बेइत्तेकादी है उस इंसान की तरह, तो खुदा से कहें, खुदा के हजूर झुकें और जिस तरह यीशु मसीह ने उसकी बेतकादी का इलाज किया, खुदा आपका भी इलाज करेगा। अगर आप बीमार हैं तो आप बीमारी में मुब्तला नहीं रहेंगे, बल्कि आपका ईमान उस बीमारी से आपको बाहर ले आएगा। यीशु के वसीला से अगर आप यीशु पर ईमान रखेंगे, अगर आप यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखेंगे तो जिस तरह उसका जो बेटा बचपन से लेकर कितनी देर तक बीमार रहा, आप भी बीमारी में मुब्तला रहेंगे। आज शिफा आपके अंदर है,
अपने ईमान को पुख्ता करें, अपने अंदर को मजबूत करें, अपने इत्तेकाद को यीशु मसीह पर मजबूत करें। तो यीशु मसीह से खुद कहें, क्या यीशु मसीह नासरी मेरी बेइत्तेकादी को दूर कर, क्योंकि ये जो इब्लीस है ये हमेशा इंसान को खुदा से दूर करता है, बेइत्तेकाद करता है। आप इसकी गिरफ्त से बाहर निकलें और यीशु मसीह पर पूरे ईमान के साथ आएं और उससे कहें कि खुदा मेरी इस बेइत्तेकादी को दूर कर। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, लूका की अंजील उसका 13 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। ये जो 2026 साल आपकी जिंदगी में आया है, आप इसको ये जो 2026 साल है, अगर आज तक आपकी जिंदगी में आया है तो आप खुदा पर इत्तेमाद रखें, खुदा पर इत्तेकाद रखें, खुदा पर ईमान रखें। लिखा है कि अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद इसे काट डालना। अगर आज आप बीमार हैं तो खुदा के हजूर अपने आप को सरेंडर करें, आजिज करें, उसके हजूर अपने गुनाह का इकरार करें और खुदा से माफी मांगे और बहाल हो जाएं। खुदा, अगर आप बेइत्तेकादी में हैं तो भी खुदा से कहें कि खुदा मेरी बेइत्तेकादी को मुझसे दूर कर, और फिर आप अपनी बीमारी से शिफा पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, खुदा के हजूर नहीं झुकेंगे, आजिज नहीं होंगे, खुदा से नहीं कहेंगे, खुदा से दूरी बनाए रखेंगे, तो आप अपनी बीमारी में ही मर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जब आप खुदा के हजूर गिरते हैं, आजिज होते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो आप बहाल हो जाते हैं। आप बीमारी को छोड़ देते हैं और बीमारी बल्कि आपको छोड़कर दूर भागती है। लेकिन आपके अंदर ईमान तो होना चाहिए, बेशक राई के दाने जितना ही क्यों ना है। जब आपके अंदर ईमान होगा तो आप उस पहाड़ को, उस बीमारी के पहाड़ को भी कहेंगे तो वो दूर चला जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि अगर आगे को फला तो खैर, अगर आज आप खुदा के हजूर नहीं झुकेंगे, उसकी इबादत नहीं करेंगे, उसको अव्वल दर्जा नहीं देंगे, तो आप कभी नहीं फल सकते। और यहाँ पर साफ लिखा है कि इसके बाद इंसान उसको काट डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप ईमान के साथ खुदा के साथ नहीं चलते तो आप काट डाले जाएंगे, आप मर जाएंगे, बीमारी में मुब्तला रहेंगे। लेकिन अपनी सोचों को आज तक अगर आपने खुदा से नहीं कहा तो खुदा से कहें, आए उसके कदमों में झुकें, उसके हजूर हाजिर हूँ, खुदा से कहें कि खुदावंद मैं गुनहगार हूँ, मेरी बेइत्तेकादी को मुझसे दूर कर, मैं आजिज होकर तेरे पास आया हूँ, इस बीमारी को मुझसे दूर कर दे, मेरी बेइत्तेकादी को मुझसे दूर कर दे। जब आप ऐसा कहेंगे तो खुदा ज़रूर आपको बहाल करेगा, हर मुसीबत से, हर दुख से, हर परेशानी से खुदा आपको आज़ाद करेगा, क्योंकि ज़िंदगी शिफा उसी यीशु के पास है, जिस पर आपका इत्तेकाद होना चाहिए, जिस पर आपका ईमान होना चाहिए। आए उसके कदमों में झुकें और उसे कहें और शिफा को हासिल करें और ज़िंदगी को हासिल करें। आए इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।